probe into Mira Road knife attack is now taking a serious turn. During a search of the accused residence, police recovered handwritten notes in which he allegedly expressed a desire to join ISIS. Sources say that the accused described the attack as a first step towards associating with the terrorist organization. Investigations have now revealed that the accused, identified as Ansari, is a science graduate who had lived in the United States for several years before returning to India after failing to secure employment. He lived alone in Mira Road, was working as an online chemistry tutor. Agencies believe that during this period of isolation, he may have been radicalized through online content. Meanwhile, search operations are ongoing, with ATS teams conducting multiple raids in Mira Road and other premises which are linked to the accused. In what is being described as a lone wolf attack, 31-year-old man was arrested for trying to stab two security guards in Mumbai. The man approached the two guards, asked them to recite the kalma, after which he stabbed them. The victims, identified as Rajkumar Mishra and Subrato Ramesh Sen, were working as security guards at a construction site which is located behind the Wonkhat Hospital near Arista Grand Mansion in Nayanagar of Mira Road East in Mumbai. Both guards sustained severe injuries in the assault. According to sources, the accused reportedly first attacked the security guard, asked him about his caste, then asked him about his religion, and then demanded that he recite the kalma. When the guard refused, the accused attacked him with a knife. And based on the CCTV footage from the area, local intelligence and the police identified the accused as Zubair Ansari, and following a search operation, took him into custody within mere 1.5 hours of the incident. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said that this is a case of self-radicalization. He informed that the case is currently being investigated by the Anti-Terror Squad, the National Investigation Agency, and the state government is providing full cooperation to these agencies. नया नगर जिहाद, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन हिंदू है, तो उन सुरक्षा कर्मी को जो आतंकवादी जिहादी दैब जुबैर अंसारी कहता है कि कलमा पढ़ो अन्यथा हत्या करूंगा, उनके ऊपर चाकू से वार किया। ये इस प्रकार के जो आतंकवादी जिहादी मूवमेंट के द्वारा हिंदुओं में डर भीति फैलाने का प्रयास मालेगांव में होता है, सिल्लोड में होता है, मुंब्रा में होता है, मालवनी में होता है। अब नया नगर भी उसका एक केंद्र बन रहा है। मोठ्या प्रमाणात पुस्तक, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातून रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे, त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे, अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। त्याला पकडलेलं आहे। आता एटीएस आणि एनआयची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल। याचं कुटुंब हे परदेशात आहे, ते अमेरिकेमध्ये आहे, हाही अनेक वर्ष परदेशात राहिलेला आहे। त्यानंतर इथे आल्यानंतर पहिल्यांदा कुर्ल्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर नवानगरला तो राहायला आला। त्यामुळे आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील। All right, details now emerging of that case. My colleague Jaiprakash Singh joining us on the phone line. Jaiprakash, क्या कुछ पता चला है हमें, कौन है ये व्यक्ति जुबैर जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, किस तरीके से ये रेडिकलाइज हुए? देखिए, इस पूरे मामले में जो आरोपी अरेस्ट हुआ है उसका नाम है जुबैर अंसारी, 31 साल उसकी उम्र है। जैप नाम से भी ये जाना जाता है। नया नगर इलाके में कुछ साल पहले रहने के लिए आया। इसके पहले वो कुर्ला में रहता था और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता है, केमिस्ट्री और मैथ्स। और मैं आपको बताऊं कि ये जो टीचर है, ये जुबैर अंसारी, इसकी जो फैमिली है वो अमेरिका में रहती है। ये भी कई साल तक अमेरिका में रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर
दो सिक्योरिटी गार्ड जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, ना ये उनको जानता था, ना उनसे कोई पहचान थी, सिर्फ उनका धर्म पूछकर उनके ऊपर हमला करना और उनका पीछा करके उन पर हमला करना। सिक्योरिटी गार्ड के जो मैनेजर केबिन में बैठे हुए जो मैनेजर हैं मिश्रा, उनके ऊपर उनके केबिन में जाकर हमला करना, ये दिखाता है कि ये रेडिकलाइज है और ये कहीं ना कहीं इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि ये लोन वुल्फ का अटैक मोडस ऑपरेंडी है। ये जो मोडस है, ये लोन वुल्फ, अगर आपने देखा होगा पूरे देश दुनिया में, तो जो लोन वुल्फ मोडस होता है उसे आईएसआई विचारधारा से प्रभावित माना जाता है। तो इसका कोई मेंटोर है, कोई इसका इंस्ट्रक्टर है, कोई इसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है भारत में, विदेश में बैठकर इन तमाम चीजों की तफ्तीश करने में एटीएस जुटी हुई है। और जैसे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया, इस मामले में एनआईए भी जांच कर सकती है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जिसकी स्थापना 2008 में मुंबई हमले के बाद हुई है, सिर्फ आतंकी हमले की जांच करने के लिए, वो भी इस मामले में जांच करेगी। क्योंकि ये मामला संगीन इसलिए है क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये समाज के अंदर बैठकर अपने आप को जो है वो एक टीचर के रूप में प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इसका असली चेहरा कल रात को सामने आया, जिसने दो सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक किया। तो क्या इसने और लोगों पर अटैक किया है? क्या इसके कांटेक्ट में और लोग हैं जो रेडिकलाइज हुए हैं, ये उनके संपर्क में है? इसलिए इसके मोबाइल डेटा को, इसके मोबाइल जो हार्डवेयर है उसको, इसके अलावा इसके पास कुछ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ आपत्तिजनक फिल्म्स मिली हैं, उन सभी चीजों को एटीएस अपनी कस्टडी में ले चुकी है, फॉरेंसिक के लिए भेज चुकी है और आगे की जांच की जा रही है। All right, Jaiprakash, thank you very much for all those details. The investigation is currently on. The accused has now been identified. He wanted to join the ISIS. This was one of the first attacks that he carried out in Mumbai. ATS is currently trying to identify how did he get radicalized, what was the source of his radicalization, as well as try and piece together his movement before that attack in order to understand whether he's carried out similar such attacks in the past as well. The picture, of course, of the accused on your screens right now, who stabbed two innocent security guards. Asked their names, asked them to recite kalma, and they failed to do so, stabbed them. They're currently injured, being treated for their grievous injuries.